We'll start with 1.5.37. ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकरशन्नाय च. All right, let us all chant the glories of Vasudev along with his plenary expansions Pradyumna, Aniruddha and Sankarshana. अब आप देखोगे कि एकदम से ये कैसे आ गया, बिकॉज अभी तक लास्ट कुछ वर्सेस में जो थीम चल रहा था, दैट वाज कि नारद मुनि was explaining his own story, his own realization, his own use case कि how he came into भक्ति, right? और वो बता रहे थे कि, और उसके बाद नेक्स्ट वो बता रहे थे कि जो सेजेस थे उन्होंने उनको चाहते हुए क्या गुह्यम ज्ञान दिया. Basically, they did nothing, but they glorified Krishna and they told him how to do that. And if you see in the previous verse, what they said is 36. So ये 36 की ही continuation है, but एकदम से वो थोड़ा सा चेंज हुआ है. अब 36 में क्या बोल रहे थे वो? While performing the duties according to the order of Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, one constantly remembers him, his names and his qualities. अब क्वेश्चन आएगा कि how we can remember him and how we can remember his name and qualities. So that is the answer. कैसे remember करेंगे? By chanting, नाम उच्चारण. So आज का जो थीम होगा that will be chanting based, right? And वो क्या बोल रहे हैं? Let's chant the glories of Vasudev along with his plenary expansions Pradyumna, Aniruddha and Sankarshana. So अभी ये थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा सा टेक्निकल होगा, तो बट विल नॉट गो डीप इनटू इट. तो अगर हमें पता होगा ना कि ये स्टार्टिंग से कैसे हुआ था. सबसे पहले कृष्ण भगवान से कौन निकले थे? बलराम, राइट? बलराम के बाद कौन निकला था? Is it प्रद्युम्न प्रभु जी? नो, बलराम के बाद ये चतुर्व्यूह प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव एंड संकर्षण. हाँ, तो इसको आप ऐसे याद रखते हो, वी सैप करके याद रख सकते हो. वी सैप, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध एंड प्रद्युम्न. तो एक्चुअल में कौन है ये? प्रद्युम्न कौन है? कृष्णा का बेटा, पुत्र. कृष्ण भगवान का पुत्र है प्रद्युम्न. और अनिरुद्ध कौन है? प्रद्युम्न का बेटा, तो उनका पौत्र. ठीक है. और वासुदेव, हु इज वासुदेव? वासुदेव इज कृष्णा हिमसेल्फ, राइट? वसुदेव का पुत्र वासुदेव, right? And Sankarshan is none other than Balram. Sankarshan is Balram, right? तो अब इसको पढ़ते हैं पहले, then we'll go. Anyone wants to read? मैं रीड करता हूँ प्रभु जी. Yes, please. According to Panchtantra, Narayana is the primeval cause of all expansions of Godhead. These are Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. Vasudev and Sankarsana are on the middle, left and right. Pradyumna is the right of the Sankarsana, and Aniruddha, and Aniruddha is on the left of Vasudeva, and thus the four deities are situated. They are known as the four aides de camp of Lord Sri Krishna. This is a Vedic hymn of or mantra beginning with Omkar Pranava, and thus the mantra is established by the transcendental chanting process, namely Om Namo Dhimahi, etc. The purport is that any transaction either in the field of fruitive work or in empiric philosophy, which is not ultimately aimed at transcendental realization of the Supreme Lord, is considered to be useless. Naradji has therefore explained the nature of unalloyed devotion service by the personal experience in the development of the intimacy between the Lord and the living entity by gradual process of progressive devotional activities. Such a progressive march of transcendental devotion for the Lord culminates in the attainment of loving service of the Lord, which is called prema in different transcendental variegatedness called rasa. Such devotional service is also executed in mixed forms, namely mixed with fruitive works or empiric philosophical speculations. Now the question which was raised by the great rishis
headed by Saunaka regarding the confidential part of Suta's achievement through the spiritual master is explained herein by the chanting of the hymn consisting of 33 letters, and this mantra is addressed to the four deities or the Lord with his plenary expansions. The central figure is Lord Sri Krishna because the plenary portions are his 8 decams. The most confidential part of the instruction is that one should always chant and remember the glories of the Lord Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, along with his different plenary portion expanded as Vasudeva, Sankarsan, Pradyumna, and Aniruddha. These expansions are the original deities for all other truths, namely either Vishnu Tattva or Shakti Tattvas. Thank you, Prabhu. ऑलराइट, तो ये अभी थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा ये, क्योंकि ये ऐसी टर्म्स यूज हुई हैं, तो एक बार इसको डायग्राम से देखेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर। ये हमारा वही सेम गोलों का चार्ट है। इसमें अगर आप देखो, यही सेम चीज ही प्रभुपाद परपोर्ट में बता रहे हैं कि सेंटर में कौन है? कृष्णा, राइट, इन द फॉर्म ऑफ नारायण। अगर आप देखो नारायण, राइट, और उनके यप, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। Oops, ओके, वही दिख रहा है क्या? परपोर्ट ही दिख रहा है कि कुछ और दिख रहा है? परपोर्ट दिख रहा है खाली। दिख रहा है खाली। एक मिनट में दोबारा शेयरिंग करता हूँ। अभी दिख रहा है? यस। ऑसम, ऑलराइट। तो ये हमारा जो चार्ट है, ठीक है, ये हमारा जो है, दिस इज विराजा नदी, या इसको बोल सकते हैं कारण ओशन, राइट। इसके नीचे जो है जितना भी ये सारा मटेरियल वर्ल्ड है, और इसके ऊपर जो है ब्रह्म ज्योति है, और ये सारे वैकुंठा प्लैनेट्स हैं। ये वैकुंठा है, और वैकुंठा से अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये है गोलोक वृंदावन, राइट। तो आज का टॉपिक नहीं है ये, विल डिस्कस इट समटाइम लेटर, बट अभी जस्ट क्योंकि वो ये अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव की बात हुई थी, तो दे ऑल एग्जिस्ट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन वैकुंठा। एंड जैसे प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है कि सेंटर में कौन है? नारायण, और ये अनिरुद्ध हैं, ये प्रद्युम्न हैं, और ये संकर्षण, और ये वासुदेव। तो जस्ट एक उससे पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कैसे हैं वो। तो ये चतुर्व्यूह जो वो बोल रहे हैं, इट्स लाइक दैट। अभी इसको इतना डिटेल में अभी एट प्रेजेंट जाने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज जस्ट आई वांटेड टू शो पिक्टोरियली कि हाउ इट लुक्स, ठीक है। सो और अब ये नीचे जो अगर आप देखो महाविष्णु, ये किसकी एक्सपेंशन है? ही इज बेसिकली एक्सपेंशन प्लेनरी पोर्शन ऑफ संकर्षण, which is responsible for the creation of all these अंडास, ब्रह्मांड। यहाँ से सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। So he is none other than संकर्षण। और प्रद्युम्न है, वो है गर्भोदक्षय विष्णु, और अनिरुद्ध जो है वो है परमात्मा क्षीरोदक्षय विष्णु, जो कि हर एक के हृदय में स्थित हैं। जस्ट इंफॉर्मेशन थिंग, अभी इसमें डिटेल में बाद में जाएंगे। तो अभी वो बोल क्या रहे हैं कि ग्लोरिफिकेशन कैसे होगी? अगर किसी का नाम लोगे तो किसी का नाम लेने से ग्लोरिफिकेशन हो जाएगी? अगर मैं बोलूंगा मितुल प्रभु, तो इसमें क्या आपकी ग्लोरिफिकेशन हुई क्या? नहीं हुई। मितुल प्रभु बोलने से ग्लोरिफिकेशन नहीं होगी, राइट। बट कृष्णा का नाम लेने से ग्लोरिफिकेशन कैसे होगी? Because he is non-different from his name It is and not different, qualities. करेक्ट, बट उससे डिफरेंट नहीं है वो। बट स्टिल अगर मैं कृष्णा बोल रहा हूँ, दैट इज करेक्ट कि ही इज, उनका नाम, उनका धाम और उनकी एक्टिविटीज, दे आर ऑल सेम, ही इज Same. कृष्णा हिमसेल्फ। बट उनकी ग्लोरिफिकेशन कैसे होगी इससे? हाउ आर यू ग्लोरीफाइंग हिम? अगर आप कृष्ण के उसमें जाओ मीनिंग में, कृष्ण का मीनिंग क्या है? ऑल अट्रैक्टिव,
So Right. you're saying him all attractive, and when you're saying all attractive, everything comes into it. All fame, all beauty, all renunciation, everything, all the opulences come into him. So when you are saying, just the moment you say Krishna, you are glorifying. The moment you say Hare, Hare is what? भक्तों के कलेशों को हर रही है जो, ठीक है. So that is you are glorifying that. If someone is taking your kaleshas, कोई आपके कलेश ले रहा है, तो आपके कोई दुख ले रहा है, so you are glorifying that person. Ram is again who gives pleasure, परम आनंद देने वाले, that is Ram. So the mantra which we are chanting, although it is name, but at the same time we are glorifying. So that is the power of this mantra. That is our नाम उच्चारण का जो है वो इम्पोर्टेंस. तो अब हम क्या करते हैं, जो इतना इम्पोर्टेंट हरे कृष्णा महामंत्र है, और उसको स्पेशली मैं इतना चीपली लिया हुआ है. सुबह चाहे सुबह उठ भी रहे हैं, बट फिर भी बीच में ध्यान है, बीच में कहीं और ध्यान जा रहा है. अटेंटिव चैंटिंग इज नॉट देयर. सो जो कि इतना पावरफुल नाम है, जो कि वी आर ग्लोरीफाइंग समवन, एंड व्हाट वी आर डूइंग इज, अब मैं सुबह अविराज को भी उठा के साथ में करता हूँ. पहले मैं खुद 8 राउंड करता हूँ, तो फिर उसके बाद उसको उठाता हूँ, उसको नहलाता हूँ, करता हूँ, उसके बाद उसको बिठाता हूँ. तो उसके बाद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. अविराज चैंटिंग लाउडली. बीच बीच में हरे कृष्णा बुला रहा हूँ, फिर मैं अविराज बोल रहा हूँ. तो मैंने हरे कृष्णा बोला, कृष्णा आए, अच्छा हाँ जी निशांत बोलिए, अविराज मैं किसी और से बात कर रहा हूँ. सो these are the offenses which we are committing. And after a point I said forget it. मैं फिर कृष्णा को ही बोलता हूँ, कृष्णा आप ही से चैंटिंग कराओ, मेरे से तो वो नहीं हो, करवा नहीं पाऊंगा मैं तो. Then I leave from that room because I can't even sustain के वो, हालांकि वो जरना माता जी के साथ बैठ के बाकी बच्चों के साथ करता है, बट वो बार बार मुझे होता है कि मैं उसको पोक करूँ कि वो क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा. सो बट मेरा माइंड नहीं जा रहा कृष्णा पे, which is wrong, right? So this is this is how we are doing. तो इसका एक अटेंटिव चैंटिंग का एक पूरा, आई थिंक विल रिक्वेस्ट विष्णु प्रेश्वर प्रभु टू टेक अ लेसन, एक वर्कशॉप एक्चुअली, क्योंकि अब सभी लोग 16 माला कर रहे हैं. बट कुछ कई लोग मैं देखता हूँ, इवन मैं भी कई बार 1.25 घंटे में खत्म हो जाती है, कई बार 1 घंटे में खत्म हो जाती है. तो अभी रथ यात्रा पे हम ना, मैं सचिन प्रभु और प्रदीप प्रभु, हम उनको मिले थे, अर्जुन सखा प्रभु को. तो ऐसी चैंटिंग की बात शुरू हुई, तो हमने बोला कि प्रभु हमारी तो चैंटिंग 1.25 घंटे में खत्म हो जाती है. तो बोल रहे हैं कि नहीं भाई, तुम कुछ, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. चैंटिंग कम से कम फास्ट, अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा भी है, तब भी इट शुड नॉट गो less than 1.5 hours. Otherwise it's 2 hours is ideal, but 1.5 hours से कम तो 1 भी सेकंड नहीं होना चाहिए. तो हमने कहा कि हम तो ठीक कर रहे हैं. कहते आप मिस्टेक कर रहे हैं. हमने कहा नहीं, हम नहीं कर रहे हैं. तो उन्होंने बोला, कहते आप बीड्स को घुमाने में मिस्टेक कर रहे हो. कई बार हम क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और हम बीट कर देते हैं आगे, और हरे राम 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 हरे हरे, नेक्स्ट बीट पे चला जाता है. और दिस इज नॉट हैपनिंग अदरवाइज तो हाफ ही टाइम में हो जाए. नॉट हैपनिंग एवरी टाइम. इट हैपन्स, दिस इज व्हाट अर्जुन सखा प्रभु टोल्ड अस, राइट? इट इज हैपनिंग आफ्टर एवरी 3 और 4 बीट्स के बाद ऐसा हो रहा है. एंड दैट आई ऑल्सो रियलाइज. फिर हमने उनको बोला, हमने कहा प्रभु फिर हम ऐसा कर लें कि टाइम के हिसाब से कर लेते हैं, कि हम 18 राउंड कर लेते हैं 16 की जगह. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वो भी इट्स ओके, बट हर रोज नहीं कर पाओगे आप 18. किसी दिन आप बोलोगे यार चलो 16 हो गए हैं, तो 16 ही रहने देते हैं. तो इसी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करो. और कई बार प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम है, राइट? हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण, वो कृष्ण कृष्ण नहीं हो जाता. कृष्ण कृष्ण जब बोलोगे ना, तो उसको बोलने में टाइम लगता है. जब आप फास्ट बोलोगे, कभी भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोला जाएगा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राइट? और हरे हरे में भी प्रॉब्लम है. तो ये there are modulation techniques how we can do that. So it's a complete workshop. I'm just touching upon it. और फिर ब्रीदिंग से आपका फोकस होता है. हम जब चैंटिंग करते हैं, हम मुंह से ही सांस लिए जा रहे हैं. वी शुड ब्रीथ फ्रॉम द नोज. उससे हमारा कंसंट्रेशन, फोकस सब कुछ आएगा. तो विल जस्ट आई जस्ट थोड़ा डिग्रेस हो गया हूँ, बट पॉइंट इसमें था कि चैंटिंग वी शुड नॉट टेक कृष्णाज नेम चीपली. दैट्स द पॉइंट हियर, ठीक है? अब नाम, एक और एग्जांपल इसमें हम देख सकते हैं कि नाम उच्चारण करने से हम ग्लोरीफाई कैसे कर रहे हैं, नाम की महिमा कैसे उनकी हो रही है, राइट? तो अगर हम फॉर एग्जांपल, अगर कोई लड़का अपनी
गर्लफ्रेंड को बोलता है कि यार तेरी तो मतलब तू तो अप्सरा जैसी है, यू आर लाइक एन एंजल, है ना। तो क्या उसने अप्सरा देखी है? नहीं, अप्सरा तो कहाँ देखी होगी उसने। ठीक है। पर जस्ट उसको अप्सरा के नाम से संबोधित करके, जस्ट उसने नाम लिया है एंजल, राइट, और यू आर अप्सरा, तो उसकी क्या हो गई, ग्लोरिफिकेशन हो गई, जस्ट बाय यूजिंग द नेम। सो दिस इज हाउ आल्सो वी कैन अंडरस्टैंड के कैसे जस्ट नाम लेने से हम वो कर सकते हैं, किसी को ग्लोरीफाई कर सकते हैं। और अभी पीछे जो वर्सेस थे उनमें क्या आया था कि हम जो भी काम कर रहे हैं, वी शुड डेडिकेट टू कृष्णा, वी शुड डेडिकेट टू कृष्णा, कीप कृष्णा इन सेंटर एवरीथिंग। बट हाउ वी कीप कृष्णा इन सेंटर? राइट, बाय टेकिंग हिज नेम्स। अब अगर मैं आपको खाने पे बुलाऊं, खाने खाने के लिए बोला, मैं कहा प्रभु प्रसाद ले लो, अब कौन से प्रभु, अगर 10 प्रभु खड़े हैं वहां पे, जब तक मैं मित्तुल प्रभु नहीं बोलूंगा तब तक आप आके कैसे खाना ग्रहण करोगे, प्रसादम ग्रहण करोगे, राइट। तो अगर मुझे कर्मा, अपने कर्मा आपको देने हैं, आई एम ऑफरिंग माई वर्क टू यू, सो आई हैव टू से इट, राइट। जब तक मैं चैंटिंग नहीं करूंगा, मैं जितना मर्जी अपना कर्मा ऑफर करे जाऊं, किसको कर रहे हो भाई, किसी को नहीं पता। ब्लर आ रहा है क्या वीडियो? तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो नाम लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाम से ही आप किसी को बुलाते हो, राइट। सो दैट्स, हाँ, अब एक और इसमें बात टच हुई, इज सच अ प्रोग्रेसिव मार्च ऑफ ट्रांसेंडेंटल डिवोशन फॉर द लॉर्ड culminates in the attainment of loving service of the god, which is called prema, in the different transcendental variegatedness called rasas। ठीक है। अब रसास तो एग्जिस्ट करते हैं इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो ट्रू फॉर्म आइडियल रसास जो हैं, राइट। और वो कैसे होते हैं कि उसमें प्रोग्रेसिव, और वो ईच एंड एवरी पासिंग डे के साथ वो और बढ़ते रहते हैं। वो हम, अब हमारे इसका अगर मैं मंडेन एग्जांपल अपने मटेरियल वर्ल्ड के साथ लूं, यहाँ पे कौन से, यहाँ पे भी वो रसास हैं, बट वेरी सैंपल, छोटा छोटा सैंपल है, ट्रेलर है, राइट। तो जैसे एक जो सबसे प्योर प्रभुपाद बोलते हैं, which is corresponding, which is very close to, I mean, closest you can say to rasas which are observed in spiritual world is माँ और बच्चे का वात्सल्य रस। तो एक माँ और बच्चे का जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज माँ एंड बच्चा, राइट। तो वो भी अगर आप देखो, या फादर एंड चाइल्ड भी कह सकते हो, ठीक है, बट वो भी आफ्टर अ पॉइंट दैट रसस गोज डाउन यार। मतलब एक बच्चे को कितना सर्व कर लोगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 24 घंटे बच्चे को सर्व कर सकते हो। आफ्टर अ पॉइंट, बेटा ये ले रिमोट, ये ले मोबाइल, ये ले आईपैड, पीछा छोड़ मेरा। सो दैट इज द नेचर ऑफ रसा इन द मटेरियल वर्ल्ड, दैट के वो क्षीण होता जाता है थोड़ी थोड़ी देर में। बट वहां पे बाय ईच पासिंग डे, दिस इज प्रोग्रेसिव मार्च। कैन यू इमेजिन? So that is, time is enhancing. That is what it is saying, right? Time is enhancing the spiritual. Time is enhancing the activities of the devotees and Krishna as well in the spiritual world, right? तो ये तो थी टॉप मोस्ट थिंग। साथ ही प्रभुपाद ने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया है कि चलो कोई बात नहीं, जो हम जैसे लोग हैं, सच डिवोशनल सर्विस इज आल्सो एग्जीक्यूटेड इन मिक्स्ड फॉर्म्स। So that mixed form is what we are doing, mixed with fruitive work and empirical philosophical speculations. So don't be get disheartened. At the same time प्रभुपाद ने बोल दिया कि अगर आप वैसी डिवोशनल सर्विस टोटल क्या बोलते हैं उसको, अनन्य, अन्य अन्य अभिलाषिता शून्यम, है ना। अगर आप प्योर भक्ति नहीं कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो ओके, यू कैन डू मिक्स भक्ति एज ऑफ नाउ, बट दिस इज अवर फाइनल डेस्टिनेशन, राइट, वेयर वी कैन एक्चुअली, in this world we cannot taste those rasas. एक और पॉइंट जो टच अपॉन हो रहा है यहाँ पे इज दैट द एक्सपेंशंस आर द ओरिजिनल डीटीज। ठीक है, तो वी शुड नॉट, अब ये मंत्रा दिया उन्होंने, ठीक है, सो दिस इज अ मंत्रा, राइट। ओम नमो भगवते तुभ्यम, किसको नमस्कार कर रहे हैं वो? उन चारों को। अब आप बोलोगे कि यार उनको क्यों कर रहे हो, कृष्णा को क्यों नहीं कर रहे? बट यहाँ पे प्रभुपाद क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऑल आर विष्णु तत्व, ऑल आर शक्ति तत्व, सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षणा एंड द ओरिजिनल फॉर्म कृष्णा। इट्स जस्ट दैट जितनी भी एक्सपेंशन हैं, जितने भी विष्णु तत्व हैं, दे एग्जिबिट वन पावर और द अदर,
but it doesn't mean that they don't have all the powers. They have, but for Leela purpose, they don't exhibit all of them. Right? So that's it. I think right. Okay. So next verse करते हैं. अब next verse is very important in terms of कि अब क्या है, power of chanting will come out. के benefits क्या होंगे अगर हम नाम उच्चारण करेंगे. पहले हमने देखा कि नाम उच्चारण करके glorify कर रहे हैं हम कृष्णा को, and we should not take it cheaply. And now we'll see कि how we can what are the benefits of chanting. इति मूर्ति अभिधानेन मंत्रमूर्तिम अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम सा सम्यक दर्शनः पुमान्. Thus, he is the actual seer who worships in the form of transcendental sound representation the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, who has no material form. Anyone wants to read the purport? Can I read, Prabhuji? Yes, please. Our present senses are all made of material elements, and therefore they are imperfect in realizing the transcendental form of Lord Vishnu. He is therefore worshipped by sound representation via the transcendental method of chanting. Anything which is beyond the scope of experience by our imperfect senses can be realized fully by the sound representation. A person transmitting sound from a far distance place can be factually experienced. If this is materially possible, why not spiritually? This experience is not a vague, impersonal experience. It is actually an experience of the transcendental personality of Godhead, who possesses the pure form of eternity, bliss, and knowledge. In the Amarkasa Sanskrit dictionary, the word murti carries import in twofold meanings, namely form and difficulty. Therefore, Amrutikam is explained by Acharya Sri Vishwananda Chakravarti Thakur as meaning without difficulty. The transcendental form of eternal bliss and knowledge can be experienced by our original spiritual senses, which can be revived by chanting of holy mantras or transcendental sound representations. Such sound should be received from the transparent agency of bona fide spiritual master, and the chanting may be practiced by the direction of the spiritual master. That will gradually lead us nearer to the Lord. This method of worship is recommended in the Pancharatrika system, which is both recognized and authorized. The Pancharatrika system has the most authorized code of transcendental devotional service. Without the help of such codes, one cannot approach the Lord, certainly not by dry philosophical speculations. The Pancharatrika system is both practical and suitable for this age of quarrel. The Pancharatra is most important than the Vedanta of this modern age, for this modern age. Hare Krishna. Thank you, Mataji. और तो इसमें क्या बोल रहे हैं वो? इति, thus, मूर्ति, मंत्र मूर्ति. This मंत्र मूर्ति word is very important. तो मंत्र मूर्ति क्या है? इस वर्ड को पहले समझते हैं हम. Right? मंत्र and मूर्ति, which is saying मंत्र is मंत्र जो हम उच्चारण कर रहे हैं, it's name, right? Name and his form. Mantra and Murti are non-different. जैसे अभी रुचिता माता जी ने बोला, right? His name and the Lord himself are same. And at the same time, it is saying Amurtikam. Amurtikam means one who has no form. Now, and these words are used back to back. Mantra Murtim Amurtikam. Amurtikam is Lord who has no material form. Right. So he has a form, but Satchidananda. His form consists of Sat, Chit and Anand. His form is not made of material. Like हमारी form is made of material, right? 5 gross elements: earth, air, ether, water, fire, air. And 3 subtle elements are mind, intelligence and false ego. Alright? But Krishna की जो form है, that is
सच्चिदानंद। तो अब इसमें मंत्र से इस लाइन से क्या समझ आ रहा है कि इसमें मूर्ति इज मटेरियल, मंत्र इज स्पिरिचुअल। दिस इज द पॉइंट विच वी आर ड्राइविंग फ्रॉम हियर कि हमारी हमारी कौन सी फॉर्म है? ग्रॉस बॉडी, ग्रॉस फॉर्म, मैटर की बनी हुई फॉर्म, एंड द मैटर कैन नॉट टच स्पिरिट। एंड मैं देवामृत स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रहा था यही मेलबर्न मंदिर में, तो मैंने उनसे क्वेश्चन भी पूछा, तो उन्होंने बोला कि वी कैनॉट इवन स्टार्ट द डिवोशनल सर्विस हियर। वो डिवोशनल सर्विस, जैसे अभी पिछले हमने वर्ष में पढ़ा ना कि डिवोशनल सर्विस जो एक्चुअल रसा का आदान प्रदान जो होता है, दैट एक्चुअली स्टार्ट्स व्हेन यू गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। Here we are just trying to do that, and the best form, only thing which is spiritual here is sound. This is what Prabhupada is saying, right? Sound is the only thing which is transcendental, because कैसे वो ट्रांसीडेंटल है? बिकॉज मंत्रा में कौन है? कृष्णा का नाम, विच इज स्पिरिट. All other senses which we are touching or we are doing Pada Sevanam and every other thing is matter. We are touching matter. We are trying to serve the Lord with our other senses. But sound is the most purifying. That is why chanting की इतनी importance दी जाती है. कि chanting is 99% of the devotional service is chanting. So this whole verse, these verses are all about chanting. और उसको और deep meaning से समझाया जा रहा है अलग-अलग तरीके से, ताकि वो हमें समझ में आए. अदरवाइज ऐसे समझ में नहीं आता कि यार ऐसे कैसे 99% कैसे हो सकती है चैंटिंग. अब समझ में आ रहा है कि वो कैसे चैंटिंग है, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग, साउंड रिप्रेजेंटेशन इज द ओनली थिंग विच इज स्पिरिट, एवरीथिंग एल्स इज मैटर. सो दैट इज वाई मंत्र, मूर्तिम एंड अमूर्तिकम. अमूर्तिकम इज actually he doesn't have a form which is matter, and he can be accessed only with the transcendental sound form. So that is why इट इज इम्पोर्टेंट, राइट? तो नाम उच्चारण करने से क्या हो जाता है? हमारे मन में भगवान की छवि उत्पन्न हो जाती है. यस माता जी, आपका क्वेश्चन है? Please, I first would like to apologize if I'm, being wrong or, I just apologize in advance. So does that mean that deity worship is completely void according to this verse? Not completely void. That's what I'm saying. All other processes are there, but अगर हम वो कर रहे हैं, जैसे पिछली लाइन में हमने पिछले वर्ष में देखा था ना कि प्रभुपाद ने in the very next line he wrote that it's okay. जो नहीं कर सकते अभी, obviously अब material world में we can do whatever best we can, right? But that deity worship still comes in that 1%. It will never come in 99%. All other activities will come in 1%. deity worship से क्या होगा? All other things purify us, but only so that we can develop the taste in chanting, because that is the only thing which connects us, the sound vibration which connects us the best, right? बाकी ऐसा नहीं है कि और सारे processes void हैं या we should not do that, because we are at that level that we cannot do chanting. अगर मैं कमरे में बंद करके बोलूं किसी को कि मैं तुझे $10,000 दूंगा एक दिन का, तुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैंट करना है, कोई करेगा? नहीं करेगा. कहेगा मेरे से 10,000 ले ले, मुझे कमरे से बाहर निकाल दे. राइट? सो that's... is my assumption correct? Sorry to interrupt, apologies. Is my assumption correct that but I keep telling myself that so that I get used to, being around Krishna, serving him. That's why I'm doing deity worship. So is that assumption okay to have? Yeah, definitely. So I get in the mood of service. Mood of service, exactly. तो कोई भी आप सर्विस जो कर रहे हो, that is bringing you one step closer to Krishna. And sooner or later, that definitely that taste of chanting, सभी किसी का taste of chanting नहीं है यहाँ पर. I mean, at least I can talk about myself. मेरे को तो बिल्कुल मजा नहीं आता chanting करके, right? तो वो taste develop होगा धीरे धीरे, definitely होगा, right? जैसे अब हमने पहले पढ़ा था ना कि नारद मुनि का कैसे हमने स्टोरी देखी और उसके साथ हमने डायरेक्ट अपना रिलेट करके देखा. और एक मैं बताया भी था ना पहले कि वेट ग्रास है, वेट ग्रास को अगर आप आग लगाए जाओगे तो वो जलेगी नहीं, बट वो मॉइस्ट हो जाएगी. फिर मॉइस्ट को आप आग लगाए जाओगे तो वो ड्राई हो जाएगी. फिर ड्राई को जब आप आग लगाओगे तो एक्चुअली आग लग जाएगी, राइट? तो अब हमें पता नहीं है हम पिछले जन्म में कौन सी ग्रास थे, अब कौन सी ग्रास हैं. वी डोंट नो अबाउट दैट, but what we know is that we should keep trying, and definitely even if it is wet it will turn to moist, and if it is moist it will turn to dry. Right? So keep doing whatever devotional service,
वी आर डूइंग, इवन इफ देयर इज, अगर वो चैंटिंग में टेस्ट डेवलप नहीं भी हो रहा, व्हाट इट इज डूइंग इज कि आपका जो हार्ट है ना, मंत्रा, इस मंत्र मूर्ति, मंत्र इज मन को तारता है, वो मन को आपका प्यूरिफाई करे जा रहा है। और प्रभुपाद ने इसमें बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया उसमें, राइट। मूर्ति, अब उन्होंने क्या बोला है, मूर्ति का मतलब क्या है, फॉर्म, एंड मूर्ति का मतलब क्या है, डिफिकल्टी, राइट। अब अमूर्तिकम क्या हो गया, विदाउट डिफिकल्टी, ठीक है। तो अब डिफिकल्टी को हटाने के लिए क्या होता है, जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो कृष्णा comes and manifests in our heart, but for that our heart has to be purified first of all. but अगर वो कैसे होगा, चैंटिंग से प्यूरिफाई होगा, राइट। अब अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल पानी है, पानी अगर टर्बुलेंट है तो उसमें जो नीचे नीचे वो हमें दिखेगा नहीं, राइट। बट जैसे ही पानी शांत हो जाएगा उसके नीचे की चीजें आराम से दिखने लग जाएंगी। ऐसे ही हमारा मन है, अभी हमारा मन शांत नहीं है, पर जैसे ही हम चैंटिंग करेंगे करेंगे तो हमारा मन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जैसे ही शांत होगा मैनिफेस्ट हो जाएंगे कृष्णा। तो वो मंत्रा मूर्ति का मंत्रा से वो मूर्ति हमारे सामने मैनिफेस्ट हो जाएगी। दैट इज अनदर डेफिनेशन ऑफ मंत्र मूर्ति और अमूर्तिकम। दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को मितुल प्रभु को अपने डिनर पे बुलाना है घर, तो मैं कहूँगा प्रभु अभी 7:30 हुए हैं, आप आ जाओ डिनर पे आ जाओ। तो अब मैंने बुलाया, अब मितुल प्रभु को ट्रगनीना से पॉइंट को आने में टाइम लगेगा ना। तो जैसे ही हमने चैंटिंग करके हम भगवान को बुला रहे हैं, पर थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उनको आने में। बट अगर मन प्यूरिफाइड होगा तो वो ऑलरेडी मैनिफेस्टेड होंगे एंड ही विल इमीडिएटली कम, इमीडिएटली कम। एग्जाम्पल कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल अब मैं जूम पे बैठा हूँ, राइट। अब मैंने अपना वीडियो बंद कर दिया, आपने मुझे बोला निशांत प्रभु कहाँ हो, आपने ऐसे बोला और मैं एकदम से आ गया, इमीडिएटली मैनिफेस्ट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, जब आपका चैंटिंग कर करके मन तर जाता है, जब मन प्यूरिफाई हो जाता है तो कृष्णा को आने में टाइम नहीं लगता है, विदाउट डिफिकल्टी। सो ही कम्स एट योर बैक एंड कॉल, राइट। एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी एग्जाम्पल है, राइट। जब ये हुए थे, सबसे बड़ी तो प्रहलाद महाराज की एग्जाम्पल, उन्होंने बोला इस पिलर में है, हाउ इमीडिएटली ही केम इनटू दैट पिलर, राइट। और आके उन्होंने सॉरी मांगा, देख रहे हो कि सॉरी प्रहलाद मैं लेट हो गया, आई एम वेरी सॉरी कि तेरे को इतना कुछ देखना पड़ा, उसके बाद में आया, राइट। गजेंद्र, गजेंद्र ने जब बुलाया, नाम लिया उनका, ही केम विदाउट स्लीपर्स, बिना चप्पल के वो नंगे पैर भागे आए वहां पे, ठीक है। सो दिस इज, हमारा तो चैंटिंग करके सॉफ्ट हार्ट होता है, कृष्णा का तो ऑलरेडी इतना ज्यादा सॉफ्ट हार्ट है कि ही इज वेटिंग फॉर अस कि मेरा नाम लो तो सही एक बार, और एक बार नाम लेना है। जैसे प्रभुपाद ने बोला ना कि एक बार जस्ट अगर प्योर हार्ट से दिल से एक बार भी नाम लेंगे ना, ही विल कम इमीडिएटली। सो दिस काइंड ऑफ फेथ वी शुड हैव। और हमारे अब करदम मुनि, अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे, करदम मुनि ने बहुत तपस्या करी, तो भगवान आए और आके वो रोने लग गए उसकी ऑस्टेरिटीज और उसकी तपस्या देख के। और वहां पे बिंदु सरोवर बन गया, अगर आप जाओ वहां पे है, आई थिंक बिहार में या कहीं पे है, आई डोंट नो। तो वहां पे अभी भी है वो बिंदु सरोवर, वो पूरा सरोवर बन गया, पूरी लेक बन गई उनके आंसुओं से। सो दिस इज हाउ मच कंपैशनेट एंड विदाउट डिफिकल्टी ही कैन कम इफ योर हार्ट इज प्योर, एंड दैट विल बिकम बाय चैंटिंग। तो हाँ, अब नारद मुनि ये अपना एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, राइट, कि उन्होंने ही एक्सपीरियंस दैट, सो दैट्स हिज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, एंड वी शुड आई मीन टेक कंप्लीट बेनिफिट फ्रॉम हियर। नॉट ओनली नाम, वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि अब ये जो हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम हम सुन रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, ये हमारी, वो बोल रहे हैं सुनो भी ना, एटलीस्ट अगर एक डिजायर भी आ जाती है सुनने की, इवन दैट इज सफिशिएंट, देन आल्सो आई विल मैनिफेस्ट, इट गोज टू दैट लेवल, ठीक है। तो हम तो यहाँ पे इतने एंथुसियास्टिकली सुन रहे हैं, अब यहाँ पे जो आए हुए हैं पे किसी को पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे आने के, नहीं मिल रहे, फिर भी आ रहे हैं और ये सुन रहे हैं हम, एंड दैट इज वाई, बिकॉज हमारा थोड़ी सी नाम में रुचि हो गई है हमें, भगवान के नाम में, दैट इज वाई वी आर हियर। और वो क्या कर रहे हैं, हम जस्ट वी आर सुन रहे हैं, दैट इज वाई सुनने पे श्रवणम, श्रवणम इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज वाई वो सुनने
ज्यादा वो दिया जाता है, बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे टू टू अटेन दिस लिबरेशन। अब पंचरात्रिका, इसमें काफी बार वर्ड यूज हुआ है, तो किसी को अगर क्वेश्चन आ रहा हो तो पंचरात्रिका इज नथिंग आई वुड से वेदांता है, जो मतलब सिनॉप्सिस कहूंगा या क्या कहूंगा, सार सार बोल सकते हैं इसको। वेदों का सारा सार है जो नारद मुनि ने लिखा है कॉन्टिन्यूसली। इन्होंने 5 रातों 5 दिन 5 रात बैठ के लिखा था, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पंचरात्रिका। सो दैट इज रिटन बाय नारद मुनि। एंड हम अपने वैष्णव इसमें काफी इसको यूज करते हैं, इसके रेफरेंसेस, राइट। तो नेक्स्ट इसमें जो वर्ड था, इसके वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, मंत्र मूर्तिकम अमूर्तिकम। अब नेक्स्ट इसमें जो है ये लास्ट, ये इसको डिस्कस करते हैं, देन विल स्टॉप। सम्यक दर्शनः। सम्यक दर्शनः मींस सम्यक इज परफेक्टली वन हु हैज सीन। अब अगेन वही बात आ रही है, राइट, कि हम कैसे देखेंगे, जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे तब तक वी कैनॉट सी। अब फॉर एग्जांपल कहीं पे न्यूज ब्रॉडकास्ट होती है, ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट तो हो रही है सभी चैनल्स पे, पर जब तक हमारे घर पे टीवी नहीं है और जब तक हम टीवी ऑन नहीं करेंगे और जब तक हम वो उस चैनल पे ट्यून नहीं करेंगे, तब तक हमें नहीं दिखेगा। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से प्रभुपाद स्टार्ट कर रहे हैं कि इम्परफेक्ट इन रियलाइजिंग द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द विष्णु। तो हमारा क्या है, टीवी खराब है अभी। तो ऑल वी हैव टू डू इज अपना टीवी ठीक करना है, ताकि हमें वो दर्शन हो सके परफेक्टली, क्लियर क्लियर दर्शन हो सके, राइट। और इसमें क्या बोलते हैं वो एक और उसमें था कि खाली उसमें, हाँ, इसके रेफरेंस में एक और उसमें मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि दर्शन, भगवान सिर्फ अपने दर्शन ही नहीं दे रहे, उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर आप डिवोटीज के भी दर्शन कर लो ना, सो दैट इज ऑल्सो ग्लोरियस। कि आपने तिलक लगा हुआ, घंटी माला डाले हुए डिवोटी को अगर दर्शन कर लिया, सो दैट इज ग्लोरियस। पर मैंने सोचा यार ये कैसे हो सकता है, ये डिवोटीज को देख के क्या कैसे हो सकता है, ठीक है, ये तो तुम अपनी ग्लोरीफाई कर जा रहे हो, यार देखो मैं डिवोटी हूँ, मुझे देख लो आगे मैं ही कृष्णा हूँ सेम बेनिफिट मिलेगा। बट एक्चुअली अगर आप इसको रिवर्स करके देखो, देन यू विल रियलाइज। रिवर्स करके कैसे देखोगे, अगर आप कोई ऐसा कंटेंट देखते हो, हीरो हीरोइन, ठीक है, कुछ गलत दृश्य, तो उसका आपका गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ता है क्या माइंड पे? पड़ता है डेफिनेटली, आपकी कॉन्शियसनेस पे, आपके माइंड पे। तो क्या जब आप डिवोटीज को देखोगे तो उसका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। और मैंने देखा एक्चुअली मंदिर में भी, अगर मैं कई बार, मेरे को भगवान भगवान इज ऑलवेज देयर, राइट, तो उनको देख के तो मजा आता है। बट कई बार मैं देखता हूँ कि डिवोटीज को देख के यार एकदम कई बार तो मेरे रोने निकल जाते हैं, जब वो द वे दे वर डांसिंग और जब वो कीर्तन कर रहे होते हैं कुछ भी। अभी रिसेंटली वो किसके घर पे आए थे, पुनीत प्रभु की सिस्टर आई थी, तो उनको देख रहा हूँ, मतलब वो उनके फेस पे इतनी ग्लो और प्योरिटी होती है, कुछ डिवोटीज को देखते ही ना वो लगता है कि यार अरे, मतलब वो पूरा आभास होता है। तो कृष्णा बेसिकली रेसिप्रोकेट्स थ्रू हिज डिवोटीज ओनली, राइट। सो वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट के यार के डिवोटीज को देखने में क्या है। तो हमें उनको भी प्रणाम करना चाहिए, और प्रणाम ऐसे नहीं है कि मुंह में गालियां देके अच्छा ये फिर आ गया है, नॉट लाइक दैट। हाँ, तो प्रणाम ऊंचे से करना चाहिए, राइट, ताकि पता चले कि अंदर गाली तो नहीं दे रहा है ऊपर से ऐसे हाथ जोड़ा, अंदर से गाली दे रहा है, राइट। और इतना डिवोटीज का तो इतना ज्यादा है उसमें। शिव जी एक बार जा रहे थे पार्वती के साथ, पार्वती माँ के साथ, तो रास्ते में उनको एक जगह पे, वहां पे ना वो लौटने लग गए जमीन पे। तो पार्वती माँ ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? तो कहते यहाँ पर किसी भक्त ने नाम उच्चारण किया था, चैंटिंग करी थी, और उनको भगवत दर्शन प्राप्त हो गए थे, तो कहते इसलिए कर रहा हूँ। तो कहते ठीक है। तो उसके बाद आगे गए, आगे जाके फिर लौटने लगे अब पूछा तो यहाँ पर अब क्या हो गया, तो बोल रहे हैं, कहते यहाँ पर करेगा आगे कोई अब right, so this is the importance of devotees and their darshan and whatever they do, so we should not basically underestimate that. So even यहाँ तक हमारे ये भगवत गीता के उसमें था, महात्म्य में, भगवत गीता के महात्म्य में था कि पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली स्टोरी याद नहीं है, अगर किसी को आती है तो वो ही कैन पिच इन, कि एक किसी को श्राप मिल गया, वो बर्ड बन गया, और बर्ड बनने के बाद उसको किसी हंटर ने मारा और वो बर्ड गिर गया,
और गिरा वो कहाँ पे, एक रिवर थी, उसमें एक कंकाल, तो स्कल था, तो वो स्कल के अंदर, वो उसमें पानी, पानी के अंदर, स्कल के अंदर पानी इकट्ठा हुआ था, उसके अंदर गिर गया एंड ही गॉट लिबरेटेड। एंड देन वी केम टू नो कि वो जो कंकाल था, वो बंदा जो था वो वैष्णव था। सो so there are stories, I mean I don't know, so but this is like the Mahatmya of Bhagavad Gita and all, कि उस जो इतनी इम्पोर्टेंस है एक एक डिवोटी की, राइट। तो हाँ, अब एक और पॉइंट था साउंड रिप्रेजेंटेशन पे जो मैंने मिस कर दिया, जो इसमें वो बोल रहे हैं कि दिस एक्सपीरियंस इज नॉट वेग इम्पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट। ये कोई ऐसा नहीं है कि इम्पर्सनल नहीं है, कि अगर आपको लगेगा कि यार साउंड तो इम्पर्सनल है, जनरली साउंड ऐसे ही लगता है ना कि इम्पर्सनल है साउंड, बट दैट्स नॉट एक्चुअली इम्पर्सनल। अब कभी फोन पे रोए हो आप, फोन पे, राइट, तो फोन पे पर्सन तो नहीं है, बट साउंड, किसी की साउंड से ही आप रो दिए, राइट। सो it's an actual experience who possesses the pure eternity, bliss and knowledge. So sound is not a impersonal thing, it is the actual experience which you get, right? And that is what we have seen in कीर्तन। अगर चैंटिंग में नहीं इतना चलो भाव आता, बट अगर जब कीर्तन होता है तो कीर्तन की जब वो साउंड वाइब्रेशंस आती हैं, और स्पेशली जब डिवोटी जो कोई बहुत प्योर होता है और जब वो गा रहा होता है एकदम उससे, और जब मृदंगा बज रहा होता है तो एकदम से भाव आता है, राइट। सो हाउ इट इज जस्ट बाय साउंड, राइट। सो that's that's the thing. So I think we'll stop here. और तो आज के जो, I'll summarize, तो आज के जो की lessons थे, in my point of view, you can also add to it, कि नाम नाम उच्चारण, नाम उच्चारण, we should not take it lightly, right? Or because it is Krishna himself, we should not take it cheaply. ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, एटलीस्ट मैं ही, ताकि मेरी चैंटिंग की क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव हो, बिकॉज मैं भी मतलब चाहे करते सुबह को ही है, बट स्टिल वो दैट क्वालिटी इज नॉट कमिंग। सो जब हमें अब मंत्र मूर्ति और ये अमूर्ति कम, ये इतना कुछ हमें पता चला है, तो इससे आई होप कि शायद मेरे में थोड़ी वो आए, थोड़ी सीरियसनेस आए नाम को लेके, राइट। Because we don't know, second is कि we don't know what we are doing, it's a very very big thing which we are doing। हमें लगता है कि यार क्या है, चैंटिंग ही तो है, यही तो है, जब करने लग जाते हैं तो लगता है कि यार चलो ठीक है, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, बट एक्चुअली इट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग विच वी आर डूइंग, राइट। अगर हम जो एफर्ट डाल रहे हैं ना, इन सम ईयर्स टाइम वी विल सी द डिफरेंस। अगर आप किसी नॉन डिवोटी फ्रेंड से मिलो या इंडिया में जाओ, आपको यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस between you and the non-devotees, the way they are suffering and you are not suffering, you will see that difference। थोड़े थोड़े सालों और रुको और फिर किसी नॉन डिवोटी से मिलना और उससे बात करना, यू विल, अगर अभी नहीं हो रहा है, बट यू विल रियलाइज कि यू आर एट अ डिफरेंट लेवल। तो ये एफर्ट डेफिनेटली विल नॉट गो वेस्ट। जो अगर आपको बाय चांस अगर 1% लग भी रहा है हमें कि यार चैंटिंग करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। बहुत से अंदर हमें रिजिलियंस आ रही है और बहुत सारी मर्सी मिल रही है, एंड वी आर गेटिंग क्लोजर टू गॉड विद ईच पासिंग स्टेप। यस माता जी। अभी फिलहाल के लिए तो दया भाव आ रहा है प्रभु जी, जो जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स नहीं कर रहे हैं ना, उनके लिए मुझे फील, आई प्रे टू कृष्णा कि उनको भी वो थोड़ा जो मुझे पुश मिला है उनको भी कहीं से तो मिले। मैं ट्राई करती हूँ, बट आई दया भाव ज्यादा आता है रादर देन कंपैरिजन नहीं होता, बट दया भाव ज्यादा इट कम्स आउट। That's the right, that's why we say पर दुखा दुखी। तो जैसे ही हमें मिलता है कोई, हमें लगता है कि यार इसको भी दे दूं, इसको भी दे दूं। तो मेरा अभी मैं मिला एक से, वो सीईओ है कंपनी का, तो उसके साथ मैं लंच पे गया, उसको गोपाल लेके गया मैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने ऐसे, उसको पता है कि मैं इस्कॉन के साथ हूँ, वहां पे भी जब उसने सर्व किया, उसने हरे कृष्णा बोला, तो ही सेड कि हाउ कि इतना सस्ता कैसे मिल जाता है। मैंने कहा ये टेम्पल का है, तो ये ट्रस्ट के कारण है, तो इसलिए यहाँ पे मतलब $12 में पूरी वो फीस मिल रही है। तो तो इस्कॉन की ऐसी बातें चल गई, तो मेरा दिल, मतलब वो सीईओ है कंपनी का और टोटली इनटू मटेरियलिज्म, राइट। उसके पास टेस्ला है, वो लैम्बोर्गिनी है। तो मैंने थोड़ा सा बोला उसको, कहता नहीं यार, कहता मैं तो यहीं पर जन्म लेना चाहता हूँ बार बार, एक और लाइफ मिल जाए मुझे।
कहता मेरी मदर मरने वाली थी, तो वो उसकी मदर वाज अ डिवोटी, ही सेड। तो उसने लड्डू गोपाल रखे होते घर पे, तो उन्होंने कहा कि कहता मैं वो कह रही थी कि मुझे मुक्ति मिल जाए, कहता जो आपकी नेक्स्ट लाइफ है ना वो मुझे दे दो, आपको आप मुक्ति ले लो, आई वांट टू कम इनटू दिस वर्ल्ड अगेन एंड अगेन। मैंने कहा इजंट इट फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, आई विल फाइंड सॉल्यूशंस। मैं ऐसे बंदे को क्या समझाना, मतलब जो इज टोटली एडमेंट कि नहीं मुझे वापस आना है। हम बोलते हैं वापस नहीं आना, उसको कहना है वापस आना है मुझे, बिकॉज अभी उसने वन साइड ऑफ द वो देख रहा है, पीपल आर नॉट इवन लुकिंग। तो मैंने थोड़ा सा उसको बताया फिलोसफी सी, कहता है यार मेरे पास आंसर तो नहीं है इनका, कहता पर मुझे आना है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। सो या यू आर राइट कि उन पे दया आती है और उनको बहुत दिल करता है उनको देने का, but again we have to be very careful when we give, so that we don't commit any offense. Very very gently we have to give. Hmm. All right, any other comments, corrections, questions? अनुज प्रभु का एक कमेंट याद आया, अनुज प्रभु नहीं, it was a long time ago, maybe a year ago. He said, if you want to preach, just lead with example, do it yourself, and in what do you call it, inculcate in your personality that others get inspired by looking at you to do something that you are doing. So how did you get that, you know, glow on your face, or that sort of a compassion for other people? Correct. And you know what Chaitanya Charan Prabhu says, people don't care how much you know, they know how much you care. Right? People don't care how much you know, they care how much they know how much you care. Right? तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि ये आके फिलोसफी झाड़ रहा है और वो सब, doesn't matter. वो देखते हैं कि कितना केयर कर रहा है बंदा और कितना कंपैशनेट है, that hits them. With only love and affection you can bring someone into Krishna consciousness, and with your behavior. बोलते हैं ना ब्रजेश प्रभु भी कितनी बार कि you can preach 24 hours a day, and you can sometimes you can open your mouth as well. For a few minutes you can open your mouth. So that's the thing. Right. Good. All right. प्रभु जी कोई आ रहा है सैटरडे को, सो दैट मुझे भी थोड़ा एसोसिएशन मिलेगा होली फेस्टिवल में। फेस्टिवल में आई एम गोइंग। अच्छा ये होली में, हाँ हाँ हाँ, दीपक प्रभु वाज इंटरेस्टेड, तो आई थिंक अभी तो मुझे दीपक प्रभु का ही पता है। और कोई जा रहा है क्या? प्रभु जा रहे हो आप? मित्र प्रभु जा रहे हो? ऑसम, बढ़िया। अभी आप बोल रहे थे ना that you literally have tears in your eyes when you listen to devotees or you meet them. मैं अभी सुनीता माता जी को इतना ज्यादा मिस कर रही हूँ that you know I am actually missing her right now so much. Yeah, and all of you as well. Yeah. आप जा रहे हो किसी भक्ति वृक्षा में? हाँ प्रभु जी, ओखली में स्टार्ट किया है मैंने, 3 फ्राइडे से गई हूँ। Even that is 35 minutes drive for me, but वहाँ पे भी बच्चे कीर्तन करते हैं पहले। राहुल प्रभु जी को भी बहुत मिस करती हूँ, जब भी वो बच्चे स्टार्ट करते हैं ना, there is one child who starts exactly like राहुल प्रभु जी used to do it. जिमित प्रभु के घर पे है ना? हाँ, जिमित प्रभु जी के घर पे। Right. But it's जो तुम लोगों के साथ कनेक्शन हो गया है ना, वो तो हाँ, that's what, right? तो कब आ रहे हो वेस्ट में वापस फिर? I'll pray to Krishna. We'll also pray. Thank you for the wonderful class, Prabhuji. Thank you. All right. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, I also want to clear one point. As you were saying, as you mentioned, I think about Kardam Muni, na, कि जब Kardam Muni was doing austerity and Krishna has come and he started crying. तो वो प्रभु वो clear करना था, जितना मुझे याद है, मैंने ये पढ़ा था कि आई थिंक वो इसलिए रोए थे कि उन्होंने ऑस्टेरिटी की थी, बट उन्होंने ये ब्लेसिंग मांगी, बेनेडिक्शन की, आई जस्ट वांट टू मैरी गुड गर्ल। तो उनको ये लगा कि इतनी ऑस्टेरिटी करने के बाद व्हाई इज आस्किंग ओनली फॉर दिस, मतलब लिटिल, इट इज वेरी लिटिल बेनेडिक्शन फॉर हिम, नो? तो आई थिंक दैट्स व्हाई ही क्राइड एंड वहां पे वो सरोवर बन गया। एम आई राइट प्रभु? और कुछ और? नहीं, एक्चुअली एज आई नो, वो रोए सिर्फ इसीलिए थे कि उनकी ऑस्टेरिटी देख के, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड ऑफ ऑल, करदम मुनि वाज नॉट अ नॉर्मल डिवोटी, ही इज वेरी एक्सॉल्टेड। और वो कौन थे? ही वाज वन ऑफ द प्रजापतिज। अब प्रजापति क्या थे कि वो ब्रह्मा के पुत्र थे। वो जैसे नारद ब्रह्मा के पुत्र थे, ऐसे वो भी ब्रह्मा के पुत्र थे। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू क्रिएट द प्रोजेनी, सो दैट इज व्हाई he asked for it. और
दैट इज व्हाई कृष्णा इज आल्सो मतलब अमेज्ड कि यार बंदे ने इतनी ऑस्टेरिटी करी एंड स्टिल टू फुलफिल द ऑर्डर्स ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर ब्रह्मा, ही इज रेडी टू गो टेक द गृहस्थ आश्रम। ही हैड नो रुचि एट ऑल, उसका कोई ओके इरादा ओके। नहीं था। मेरे को उनको कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन और वो सब नहीं करना था जो बंदा हाँ भगवान देख लिया उनको, है और जो इतनी ऑस्टेरिटी कर रहा हाँ है, उनको कोई मतलब नहीं था वो करने का। उनको बट प्रजा को उत्पन्न करने का वो स्पिरिचुअल वो ब्रह्मा जी से वो हाँ, मिला वो ऑर्डर। उनको ऑर्डर मिला था एंड जस्ट टू फुलफिल दैट ऑर्डर ही इज रेडी टू डू दैट। दैट इज व्हाई, दैट इज अनदर रीजन व्हाई ही क्राइड। एंड उसके बाद जब उन्होंने देवाहूति से शादी करी, मनु 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 वैवत मनु जो है उनकी डॉटर से शादी करी उन्होंने, तो ही टोल्ड हिम कि जैसे ही ये प्रेग्नेंट होगी, जैसे ही ये बच्चे होंगे, आई विल टेक संन्यास। On that condition, he married Devahuti, and for years, Devahuti ने उनकी सर्विस करी, and he forgot about that. Okay, and then Devahuti said कि नहीं, now I want children, and then उन्हें फिर उनको बच्चे हुए, उनके नौ बेटियां हुई जो आगे, it's a long story, but yeah, तो बेसिकली उनकी ऑस्टेरिटी देख के एंड उनका ये समर्पण देख के कि वो ना चाहते हुए भी वो एज अ सर्विस ही इज रेडी टू कम इनटू द गृहस्थ आश्रम। हाँ मैंने ऐसे नहीं, एक्चुअली मैंने इस मतलब जो आपने अभी जैसे बताया ना उस भाव को मैंने नहीं आई थिंक समझा था, क्योंकि इतना डिटेल में स्टडी नहीं करते भैया। जैसे अभी आप बता रहे हो ना, आई वाज रियली फीलिंग ग्रेटफुल कि आप लोग जैसे बताते हो। मैंने कभी भी, मैं तो भागवतम के आई थिंक 4th कैंटो में चल रही हूँ और वो भी फिनिश होने वाला, कंप्लीट होने वाला है, फिनिश नहीं कहना चाहिए, बट आई नेवर टुक इट एज ए स्टडी ना। जैसे अभी एक एक वर्ड्स हम पढ़ते हैं तो इट्स सो मीनिंगफुल, सो फुल ऑफ मेलो एंड रसा कि मुझे लगता है कि बस वो फिनिश ना हो, चलते ही रहे, इट्स गो ऑन एंड ऑन। तो आप लोग जैसे स्टडी करके बताते हो, इट्स सो ग्लोरीफाइंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू एंड दिनेश प्रभु कि आपकी वजह से हमें इतना अच्छा सब्जेक्ट पे स्टडी करने को मिल रहा है, सब्जेक्ट जो ट्रांसजेंडर सब्जेक्ट है। तो इतने डीप में हम लोग शायद उसको ले ही नहीं पाते, क्योंकि एक मुझे तो लगता है मैं टिक टिक लगाती हूँ एवरीडे का कि मुझे भागवतम रीडिंग करनी है 30 मिनट्स 40 मिनट्स, तो मैं जस्ट पढ़ती हूँ, समझती भी हूँ, बट इतना डीप में तो कभी भी मैं जा नहीं पाती। बट थैंक यू फॉर दैट कि आपने उसको क्लियर दैट करा। इज ग्लोरियस। रीडिंग करने से ही ही इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो अगर आप सिर्फ रीड ही करोगे तो उसी से ही आप इतने प्योरीफाई हो जाओगे, यू विल नॉट इवन रियलाइज दैट। जस्ट होपिंग प्रभु जी की कभी आए वो दिन में प्यूरिफाई हो, बट पता नहीं वो कब आएगा। नहीं बट नहीं, अभी तो ये टिक टिक वाला ही चल रहा है आई थिंक मेरा, इवन कि डोंट ये डोंट सारी लीव दैट, चीजें। डोंट लीव दैट, कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट। सो ही इज, आप डायरेक्ट प्रभुपाद को सुन रहे हो, जो प्रभुपाद ने लिखा है आप उनको उनको ही देख रहे Yes. हो, राइट, उनको ही सुन रहे हो, सो विच इज वेरी वेरी प्यूरिफाइंग। अच्छा प्रभु जी, एक और पॉइंट था जो अभी पूजा माता जी ने जब आपसे पूछा था कि आई थिंक विग्रह वाला, कि आई थिंक आप माता जी कह रहे थे कि वो विग्रह को बहुत मानते हैं कि वो उनको क्लोजर लेके जाता है। तो अर्च विग्रह तो जो है, आई थिंक अर्चनम इज वन ऑफ द 9 एलिमेंट ऑफ 9 भक्ति। processes, yep, 9, yep. तो वो तो ऐसे भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इन दैट सेंस। तो यहाँ Correct. पे उस चीज को उसको ग्लोरीफाई नहीं किया है क्या अर्चनम को, या उसको एम्फसाइज नहीं किया है, अभी रादर देन कि in context of these verses it is मंत्र मूर्ति, not अर्च विग्रह वाला वो नहीं है, इसमें सिर्फ मंत्र मूर्ति को पे स्ट्रेस दिया गया है कि मंत्र करने से ही itself, जो नाम लेने से ही you will attain, आपका हार्ट प्यूरिफाई हो जाएगा and you will attain the Krishna in your heart, Krishna will manifest in your heart. तो बट अदरवाइज एज आई सेड वो 1% में, इट अर्च विग्रह भी वो 1% में ही आता है, नथिंग विल कम इनटू द 99%, राइट। तो ओके अर्च ओके। विग्रह हो गया और जो भी जितने भी 9 प्रोसेसेस दे विल ऑल हेल्प यू इन गेटिंग क्लोजर टू कृष्णा, बट दे कैन नेवर, नो वन कैन एवर टेक द प्लेस ऑफ नाम उच्चारण एंड संकीर्तन। सबके साथ कीर्तन एंड चैंटिंग बोथ आर द बेसिकली मोस्ट fastest way, I would say. ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलो, all right जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, साम्य भक्तवृंद की जय।
Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna.